السلام علیکم، BTV نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا خطاب۔ کہا پاکستان درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ 3 سالوں میں ملک میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد میں 60% اضافہ ہوا۔ غریب اور متوسط طبقے کے لیے خصوصی ہاؤسنگ اسکیم شروع کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ صدر مملکت نے خبردار کیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو سیاسی فٹ بال نہ بنایا جائے۔ ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے، EVM سے انتخابی عمل میں بہتری آئے گی۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا ڈیسک بجا کر احتجاج اور شور شرابہ۔ اپوزیشن نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ صدر مملکت کا اپوزیشن پر طنز، کہا عوام کو سمجھ آ گئی، یہاں بھی لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اپوزیشن شور مچائے مگر حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو، شاہد خاقان عباسی اور دیگر اہم رہنما بھی شریک۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور غیر ملکی سفیر بھی ایوان میں موجود۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کہتے ہیں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر لاہے عمل بنائیں گے۔ صحافیوں کے دھرنے سے خطاب میں کہا کالے قانون کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ کہا حکومت کو تنبیہ ہے، ایسا کالا قانون لانے سے باز رہے، میڈیا کی آزادی ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ PTI کی اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی صحافیوں کے ڈی چوک دھرنے میں شرکت۔ وفاقی وزیر IT امین الحق کی صحافیوں کے مطالبات کی حمایت۔ شرکا سے خطاب میں کہا میڈیا سے متعلق قانون موجود ہے، نئے قانون کی ضرورت نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں PMDA کے کالے قانون کے خلاف عدالت بھی جانا پڑے تو جائیں گے۔ ڈی چوک پر صحافیوں کے دھرنے سے خطاب میں کہا حکومت کو صحافیوں کے روزگار پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے۔ مجوزہ میڈیا اتھارٹی صحافی پر معاشی حملہ ہے۔ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دست درازی، عدالت کا عائشہ اکرم کے 6 ملزمان کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار۔ ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کا آغاز، چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں فل کورٹ ریفرنس۔ عدالت عظمیٰ کے ججز، اٹارنی جنرل، سینئر وکلاء کی شرکت۔ گزشتہ عدالتی سال پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے مشکل سال تھا۔ کورونا سے مقدمات کو نپٹانے کی راہ میں زیادہ مشکلات کا سامنا رہا۔ گزشتہ برس 20,910 نئے مقدمات درج ہوئے، 12,968 نپٹائے گئے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کا ریفرنس سے خطاب۔ کنٹونمنٹ بورڈز انتخابات میں پنجاب میں مسلم لیگ نون، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا پلڑا بھاری، سندھ میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ہم پلہ۔ صدر مملکت اور گورنر سندھ کے حلقے میں PTI کو شکست، بلوچستان میں آزاد امیدوار آگے رہے۔ کنٹونمنٹ الیکشن میں کراچی سے PTI کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ PP رہنما سعید غنی کہتے ہیں انتخابات میں پیپلز پارٹی نے PTI سمیت تمام جماعتوں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ نو منتخب چیئرمین PCB رمیز راجہ نے عہدہ سنبھالتے ہی بڑے اعلانات کر ڈالے۔ کہا کرکٹ کی سمت کو درست کریں گے۔ کمنٹری کی آسان پوزیشن چھوڑ کر چیلنج قبول کیا۔ ورلڈ کپ کے لیے بہترین ٹیم منتخب کی۔ میتھیو ہیڈن اور ورنن فلائنڈر ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کے کوچز ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کل سے 3 دن تک شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پارہ 39 سے 41 ڈگری تک جانے کا خدشہ ہے۔ سمندری ہواؤں میں کمی سے موسم پر منفی اثر پڑے گا۔ کراچی کے شہری ملک میں مہنگا ترین آٹا خریدنے پر مجبور۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1,480 روپے کا ہو گیا۔ لاہور میں آٹا، چینی، گھی، دالوں، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ چکن کی ایک بار پھر ٹرپل سینچری۔ وفاقی حکومت کی سبسڈی کم کرنے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر خوردنی تیل، گھی اور دودھ سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی درجنوں چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سماعت۔ عدالت DG سپلائی اینڈ پرائسز کی عدم تعیناتی پر سندھ حکومت پر برہم۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے تعین سے متعلق سندھ حکومت سے 2 ہفتے پہلے رپورٹ طلب۔ لگتا ہے حکومت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر کنٹرول ہی نہیں کرنا چاہتی، عدالت کے ریمارکس۔ چیٹا وطنی میں اندھوناک واقعہ، گزشتہ روز گمشدہ ہونے والی بچی کی لاش برآمد۔ 3 سالہ مہرین صفدر کی لاش بھٹہ کارخانے سے ملی۔ پولیس کا کہنا ہے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ بچی گھر کے باہر کھیلتے ہوئے اچانک غائب ہوئی تھی۔ تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی گئی تھی۔
कोरोना के वार जारी, मजीद 67 अफराद अब्दी नींद सो गए। मजमूई अमवात की तादाद 26,787 हो गई। 2,988 नए मरीज सामने आने से कोरोना मुतासरीन की तादाद 10,90,176 हो गई। 3,391 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रही। मुल्तान में कोरोना वायरस से एक और डॉक्टर शहीद। डॉक्टर आसिफ कोरोना के बायस इंडस अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। शहीद डॉक्टर कोरोना वार्ड 11 के इंचार्ज थे। 2 माह कबल कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। अफगान तालिबान को वादी पंजशेर में साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सोलेह के ठिकाने से डॉलर्स, अफगानी करेंसी और इंतहाई कीमती नवादरात का बड़ा खजाना मिल गया। अफगान मीडिया के मुताबिक डॉलर्स और अफगानी करेंसी से भरे कई सूटकेस मिले। अफगान तालिबान करेंसी गिनने से भी कासिर। PIA की अफगानिस्तान में नई हुकूमत के कयाम के बाद पहली परवाज काबुल पहुंच गई। PIA के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एयर कमोडोर जवाद जफर CEO PIA के नुमाइंदे की हैसियत से खुद जहाज में मौजूद रहे। मुल्तान में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 782वें सह रोज़ा उर्स की तकारीब। शाह महमूद कुरैशी ने दरबार आलिया हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल दिया। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ार शरीफ पर फूलों की चादर चढ़ाकर खुसूसी दुआ की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला राजौरी में एक और जवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी नौजवान को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। इलाके में सूरत हाल कशीदा। और फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड स्टार और कॉमेडी के बादशाह लहरी को दुनिया से बिछड़े 9 बरस बीत गए। गृहस्थी, रुसवाई, बदल गया इंसान, मेरे हमसफर समेत कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मज़ाहिया किरदार आज भी लोगों के दिलों में मकबूल हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। गुज़िश्ता रोज होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपसेट का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर से निमरान इस्माइल के हल्के क्लिफ्टन में PTI को शिकस्त हो गई। क्लिफ्टन कैंट की 10 में से 4 नशस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली, जबकि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने 2 नशस्तें हासिल की। 2 नशस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से फिर साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है और वजीर आज़म इमरान खान ही वाहिद कौमी रहनुमा हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही है। उन्होंने कहा कि नून लीग बलूचिस्तान में कोई सीट हासिल न कर सकी। पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोई सीट नहीं है। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज हुए कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। मुल्क के 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 212 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई। फवाद चौधरी का कहना था कि PTI का असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हैसियत फिर आश्कार हो गई। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में PTI तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी जीत अपोजिशन की हार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि मुल्क भर में PTI को कामयाबी हासिल हुई। फैसल जावेद का कहना था कि जहां PTI को शिकस्त हुई वो ज्यादातर आज़ाद उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर बुरी तरह शिकस्त से दो चार रहे। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब के दौरान वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला भी मौजूद थे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के सदर, सर्विसेज चीफ्स और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के मुश्तरका इजलास से खिताब के आगाज़ पर ही अपोजिशन अरकान ने ऐवान में शोर शराबा कर दिया और शदीद एहतजाज किया। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान ने मुसलसल नारेबाजी की और स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। अपोजिशन अरकान ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर आजाद मीडिया पर हमला नामंजूर, लोगों का मौशी कत्ल बंद करो, मीडिया पर मार्शल लॉ मुस्तरद और PMDA को मुस्तरद किए जाने से मुतालिक नारे दर्ज थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नूर मुकद्दम के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मकतूला के वालिद शौकत मुकद्दम भी मुजाहिरे में शरीक थे। हाई कोर्ट के बाहर मकतूला नूर मुकद्दम के दोस्तों ने एहतजाजी मुजाहिरा का एहतमाम किया। मुजाहिरीन ने नूर मुकद्दम के कातिल को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया।
मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कातलों की मुआवनत करने वालों की भी जमानत पर रिहाई ना दी जाए। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs की खिलाफ वर्जियों के बायस पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुंच गया। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 2988 केसेस सामने आए। मजीद 67 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। इसके मजीद 3391 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 5.62% हो गई है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वैन ने कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। अफगान सूरत हाल के तनाजुर में सदर बाइडन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से राब्ता करेंगे। सेनेटर क्रिस वैन का अपने एक बयान में कहना था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कौमी सलामती के मुशीर और बाइडन इंतज़ामिया से इस सिलसिले में बात की है। सदर बाइडन और इमरान खान के दरमियान राब्ते की राह में कोई रुकावट नहीं। उन्होंने बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और आला हुकाम का पाकिस्तानी हम मनसब हुकाम से मुकम्मल राब्ता है। आलमी बरादरी को तालिबान पर दबाव डालने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद कायम होने वाली तालिबान की नई हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की तालीम से मुतालिक नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज काबुल में तालिबान की अबूरी हुकूमत के हायर एजुकेशन के वज़ीर अब्दुल बाकी हक्कानी की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान में तालिबात के लिए नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम के हालिया ऑक्शन में 4 में से सिर्फ एक कंपनी ने फरोख्त के लिए पेश करदा स्पेक्ट्रम के 1/3 से भी कम की बोली लगाई, जबकि टेलीकॉम सेक्टर से मुंसलिक अफराद इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। स्पेक्ट्रम कनेक्टिविटी की जरूरत डिजिटल पाकिस्तान का पहला सुतून है, मगर वतन अजीज में टेलीकॉम सेक्टर तमाम हमसाया ममालिक से पीछे है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का मयार और रफ्तार बड़े शहरों के कुछ इलाकों के सिवा मुल्क भर में काबिले रहम है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफोटेनमेंट में। मेंढकों की मुख्तलिफ इकसाम को खतरा लाहक। ऑस्ट्रेलिया में माहिरीन ने मुख्तलिफ बीमारियों और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मेंढक की मुख्तलिफ नस्ल को नापैद होने से खबरदार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में कई जानवरों समेत मेंढकों को भी चंद सालों में शदीद खतराक लाहक हैं, जिनके बारे में जल्द हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। तहकीक के मुताबिक साइंसदानों की एक टीम ने ऑस्ट्रेलियाई हुकाम को इस बात से खबरदार किया कि मेंढकों की 26 इकसाम 2040 तक दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, जब इनमें से 4 पहले ही नापेद हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के शुमारी इलाके के महकमा माहौलियात ने सालों के मुताले के बाद इंतजामिया को खत्म होने वाली इकसाम की निशानदेही की है। डॉक्टर्स ने खदशा जाहिर किया है कि ये मेंढक जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के रेंगने वाले जानवरों, परिंदों और पौधों की कई इकसाम की तरह मादूम हो सकते हैं, जिससे दुनिया के दीगर अवामिल के नुकसान पहुंच सकता है। उन्हें महफूज करने के लिए जल्द से जल्द इकदाम करने की जरूरत है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। दुनिया भर में लोग मसनूई दांत लगवाते हैं, लेकिन उनकी उम्र एक हद तक ही होती है और दूसरी जानिब वो मसूड़ों की मजमूई सेहत को भी मुतासिर करते हैं। अब इसका हल जामे के माहिरीन ने एक ऐसे मसनूई दांत की सूरत में पेश किया है जो बिजली बनाता है, जिससे मैल नहीं जमता और मसूड़े भी तंदुरुस्त रहते हैं। सिर्फ अमेरिका में ही 30 लाख लोग ऐसे हैं जो मसनूई दांत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जामे में स्कूल ऑफ डेंटल मेडिसिन से वाबस्ता प्रोफेसर और इनके साथियों ने मसनूई दांत बनाया है जो ब्रश करने और चबाने के दौरान खुद अपनी बिजली बनाता है। इस बिजली से 2 काम लेता है, यानी दांत पर मैल कुचैल की तह नहीं जमती और 2 इतराफ के मसूड़े तंदुरुस्त रहते हैं। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। हाल ही में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाली शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी मिनाल खान और एहसन मोहसिन के वलीमे की तकरीब का इनेकाद गुज़िश्ता शब किया गया, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। गुज़िश्ता शब कराची में मिनाल खान और एहसन मोहसिन के वलीमे की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें उनके अहले खाना समेत शोबिस सितारों ने भी शिरकत की। वलीमे के दिन मिनाल खान ने सिल्वर रंग का खूबसूरत लॉन्ग गाउन ज़ेब तन किया, जबकि उनके शौहर एहसन मोहसिन ने स्याह रंग का पैंट सूट पहना। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। शायकीन का इंतजार खत्म हुआ। न्यूजीलैंड से सीरीज के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई, जिसकी कीमत 500 से 3000 रुपए मुकर्रर की गई है।
रावलपिंडी में शेड्यूल वनडे मैचेस के टिकटों की कीमत 1 और 2,000 रुपए मुकर्रर की गई है। लाहौर में होने वाले T20 मैचेस के लिए टिकट की कीमत 500 से 3,000 रुपए मुख्तस। टिकट खरीदते और स्टेडियम में दाखिले के वक्त नादरा से मंजूर शुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हमरा लाना लाजमी होगा। असली शनाख्ती कार्ड भी होना जरूरी है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है कि सीरीज में तमाशाइयों की वापसी पर हम बहुत पुरजोश हैं। फिलहाल गुंजाइश के 25% अफराद को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। शायकीन हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते शहर कायद में शदीद गर्मी और बारिश की पेशगोई की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 14 सितंबर से शहर में गर्मी की लहर शुरू होने का इम्कान है। समुद्री हवाएं बंद रहने के बायस बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी शुमाल मगरबी हवाएं शहर का रुख कर सकती हैं। इस दौरान दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।